All right, welcome back, viewers. This is our episode number 60. Yeah, finally we have hit 60. And I'm really excited for this one because this is the first time in our 60 episode that I'm having someone from my own city, which whom I recently met through a event which is organized by him only. His name is one and only Kshitij Doval. Kshitij, I'm super excited to have you. That day we met. It's I think a week or so that we have met also, and finally we are here. We are discussing about this episode. I'm Thank you super so excited. much. Thank you so much for having me here. It's a pleasure and really excited with the energy. Hope to have a great podcast out here. Of course, our audience will love it. We have already done a poll for it, and people were excited to see what we have in here in Dehradun. And now talking a bit about Kshitij. So of course, Kshitij has his own struggles through his journey. Currently, he's the founder of Uno School of Business. He also runs UFC Founders Community, which is the biggest founders community here in Dehradun. I am also a part of it, so I can tell we needed that ecosystem in Dehradun. Kudos to that. I am happy to be a part of that community. And talking about Kshitij initially started his businesses. He has his own share of failures. Also, he is a cancer survivor. So again, Kshitij through all of his struggles realized what a founder faces every day when they run their own business. So that's where Kshitij pondered on his journey. He also founded us Accelerator, if I am not wrong, which is Okmo from the name of Okmo, right? So Kshitij has done some incredible work. He has totally generated, I think, 17 million in total till date for his clients, if I'm not wrong. More than that, perhaps now. More than that. Perfect. So let's deep dive into this episode before taking any more time of our audience. Sure, Kshitij, why not? Of course, I have told our audience about you, but it won't do justice. Why not you begin by telling about what was your first business about, where it all began? Because see, we all entrepreneurs, we have a story. I have a story that my dad business failed, was failing due to he hired an agency, they didn't deliver. So my journey started there. We all have a story, and as our audience is mostly entrepreneurs and marketers, it is all about stories. So let's begin with that. So it all started, to be honest, uh, even the thought of entrepreneurship came with a very funny story. I had a maid Okay. and she had a daughter. So the maid will come every day. I was doing my MBA back then, and uh, she'd be like, भैया मेरी बेटी के इंग्लिश बहुत खराब है, आप उनको इंग्लिश सिखा सकते हो? आई सेड श्योर, सिखा लेता हूँ मैं। आप भेज दीजिएगा। 8 बजे मेरा कॉलेज होता है, तो उससे पहले ही भेजेगा। 8 बजे आई हैव टू गेट रेडी एंड गो। तो क्या करती थी, 6 बजे आ जाती थी, 5-6 बजे आती थी, एंड अपने शी वुड मेक श्योर दैट इट्स फाइन ना, यूज हिंदी इंग्लिश इंग्लिश Yeah, बोथ। yeah. Our audience is mostly Indian, इंग्लिश, so ओके। English. तो 6 बजे उन्होंने ड्रॉप कर दिया, एंड her name was Aanchal, and I still remember. And what I started doing was I started understanding पहले आपको कितना आता है, etc. etc. And government school में थी basic, and she was in class 11th. It turns out भाई मतलब government school में भी I was very surprised to see even Shakespeare is there. Okay. Okay, वो तो ICSE and तक की मेरी नॉलेज सीमित थी अभी. इट्स क्रेजी। मतलब मैंने कहा यार ये तो पता नहीं आईसीएसई बोर्ड में होता था यार ये हाँ, तो। ICSE बोर्ड में So होता I was like, okay, ICSE से हटके मैं CBSE गया इस कारण, but okay, fine. So I was like, okay, let's see it and this and that. So I started asking some questions, and I realized that she was struggling in basic articles, adjectives. उसको वही नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। है. I Okay. like 10th में कितने मार्क्स है इंग्लिश में? She like 70. I was like 70. doesn't make sense. तो she's like कि हमारे में क्या होता है, हमारे स्कूल में टीचर आती है, वो बोलती है कि मैं जो बोल रही हूँ बस वो चुपचाप लिखते जाओ एग्जाम पेपर में, और हम वो लिखते हैं और हमें फाइनली मार्क्स मिल जाते हैं। मैंने कहा ये तो ये बहुत खराब है, आपको तो तो कुछ काफी भी नहीं खराब आता अभी। सो देन दैट इज वेयर आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं एजुकेशनल सिस्टम यू नो फ्लॉड है कहीं ना कहीं प्लॉट. पे। सो आई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिसाइडेड चलो यार, सो माय वे ऑफ टीचिंग वाज दैट मैंने डिसाइड किया कि मैंने कहा कि यार अब कैसे सिखाओगे उनको, मतलब लिटरली फर्स्ट सेकंड क्लास की इंग्लिश भी ढंग से नहीं आती थी, राइट. क्योंकि मैं एक एक स्टेप पीछे गया। ये आता है, ये आता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, कर करके फर्स्ट सेकंड क्लास की इंग्लिश तक भी उनको ढंग से नहीं आती आपकी थी। मार्केट रिसर्च होगी वहाँ एंड बेसिकली. आई वाज लाइक बाप रे, अब कैसे सिखाऊं, व्हाट डू आई डू?
So I started making a watch some YouTube videos, some animated videos, ठीक है, to start with. धीरे धीरे करके मैंने उसको नॉडी दिखाना शुरू किया, ठीक है तो ना, या slowly नॉडी इंग्लिश में छोटा 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 पार्ट कर करके I was like this is what it means. So it took around 3 months, but good thing after 3 months was she was able to understand अपने आप से what she had to do. ओके So उस दिन मुझे थोड़ा सा I felt very good that I did something good in these 3 months. And I was like यार एक स्किल तो है मेरे में, I think I can make very complex information very simple. तो इसके अराउंड आई शुड डू समथिंग. दैट इज वेयर द एंटायर ओरिजिनेशन केम, दैट हाँ यार कुछ करना है तो आई हैव टू डू इन द एजुकेशनल फील्ड ओनली, आई वांट टू डू दैट. तो यहाँ से एक आइडिया जनरेट हुआ था. हाउएवर माय फर्स्ट आइडिया फेल्ड मिजरेबली. सो द आइडिया वाज फैंटास्टिक. इफ आई टेल यू द आइडिया यू विल स्टिल बी लाइक यार दिस इज ग्रेट, ये तो बढ़िया चल जाना चाहिए, आज भी चल जाएगा. Why लाइक not दैट्स द आइडिया. and let our audience of entrepreneurs comment on it in the comment section. हाँ, श्योर एब्सोल्युटली. सो दिस इज बैक इन 2016. ठीक है, 2016 में आई हैड स्टार्टेड एन एप्लीकेशन, उन्हू ऐप करके मैंने शुरू किया. एंड उस द होल फोकस ऑफ दैट ऐप वाज, देखो आज के तारीख में क्या होता है, अगर आपको सीखना है तो आपके पास ट्रेडिशनल स्कूल है, बट उसके बाहर जाना है तो क्या करोगे आप? थिंक अबाउट इट नॉर्मली. ओके, Right. नाउ यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम समबडी, बट हु इज दैट समबडी, हाउ डू यू इवन गेट टू नो दैम? तो लेट्स बेसिकली अंडरस्टैंड कि अनमोल is, let's say, a finance influencer. Or he teaches finance, he teaches taxation, कुछ भी. तो अगर आपको कुछ सिखाना है तो आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, कोर्सेज बनाने पड़ेंगे, आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा मेटा यूज करते हुए, यूट्यूब एड्स यूज करना पड़ेगा, आपको एक टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ेगा, आपको सेंड इन ब्लू या फिर मेल चिम्प यूज करके ईमेल टारगेटिंग करनी पड़ेगी, रेजर पे यूज करना पड़ेगा फॉर अ पेमेंट गेटवे. तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं. Right? It is a lot. And I realized why not get all of them together? Okay. So I thought of making educational fun by having edutainment based content. So 1 minute का आपके पास टाइम है, आप short form content बनाओ which is free. If people like it, they can follow you. It's a social networking application. Edutainment content होगा, वहाँ पे you can follow the person and follow करके आप क्या कर सकते हैं उसमें, you can even purchase his course, you can purchase then his community membership, and you can go for one-on-one coaching. All sort of things are available. So this is the fastest way of learning something and getting expertise in a field, right? क्योंकि आपकी आप एक तरीके से ब्रांडिंग पहली हो गई, you are following them for free. अब वो उन्होंने एक नया कोर्स निकाला या कोचिंग प्रोग्राम निकाला, it's easier, right? Makes the job पहले पैदा हो गया, right. पेमेंट सारा वहीं पे ही है, कोर्सेज वहीं पे दिखेंगे. So that was the whole idea. Idea sounded fantastic, Yeah, right? idea is fantastic. है ना. Plus we had a virtual currency जिसमें KLAPS, claps, like if you really like the content, claps है, उसके बेस पे क्रिएटर को भी पैसा मिलता है, you know, things like that and all that. मैंने, पर ये वेंचर जो बर्बाद हुआ वो हुआ जब मैंने, कैटेगरीज होती है, एक कैटेगरी बनाया, and that category was entertainment. कि आई थॉट कि यार एंटरटेनमेंट में लोग डांस सिखाना चाहेंगे, ये करना चाहेंगे. ये मैं एकदम भूल गया कि वो जमाना था टिकटॉक का. ओहो. एंड लोगों ने जो पल्यूट किया, जो गंद मचाया वहां पे, वहां पता नहीं क्या पाउडर उड़ रहे हैं और पता नहीं क्या ट्रांजिशंस हो रही हैं, एंड पूरा फ्लड हो गया. एंड सारे क्लैप्स के सारे पॉइंट्स उनको मिल रहे हैं क्योंकि लोगों को तो वही देखना पसंद है. लोगों को तो वो मिल गया अपना इंस्टाग्राम दूसरा कि भाई रील देखते रहो. एंड वो वहां का बस कंटेंट, टिकटॉक का कंटेंट इंस्टाग्राम में जाता था, टिकटॉक का फेसबुक पे जाता था, टिकटॉक का उन्हों में जाता था. एंड बस, तो जो सीरियस कंटेंट क्रिएटर्स थे वो धीरे धीरे ऑप्ट आउट होने लग गए. एंड जब तक हम उसको रेक्टिफाई कर पाए, जितना अच्छा ऑडियंस था उतना धीरे धीरे जा रहा था और उसको वापस लाना बहुत डिफिकल्ट हो गया था. तो आई रियलाइज्ड लाइक इस वेंचर में, गेस मारो मैंने कितना कमाया होगा. मैंने इस पे कम से कम 1-1.5 साल दिया. एक अंदाजा. और आपने जो ऐप बनाया उसका भी तो कुछ अच्छा खासा कॉस्ट लग गया होगा. वो भूल जाओ, मैंने बनाया कितना होगा, कितने हाउ मच मनी डिड आई मेक आउट ऑफ दिस ऐप? crores. I made a total of 12.5 rupees. 12 and can you please repeat if I made a total of 12.5 rupees and I spent 10.5 lakhs. 10.5 lakhs you spent. This was like the biggest slap on the face and the biggest learning I could get. And उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं अपने फादर से 1 रुपया मांगने की. After that I'm a self-made man now. So उसके बाद हिम्मत नहीं real bootstrapping journey begins. या उसके बाद तो हिम्मत ही नहीं हो सकती.
The Correct. idea was fantastic. The problem was I had no skills. I didn't have skills of marketing. मुझे कुछ भी नहीं पता था. I was not doing any level of marketing online. आप ऐप बेस्ड कितने एड्स चला सकते हो, कुछ नहीं करा. Nothing creative in that front. मैं क्या कर रहा था, बस इवेंट्स में जा रहा था, पैम्फलेट्स बांट रहा था, एक क्यूआर कोड बना रहा था कि वहां से यू कैन डाउनलोड. हॉरिबल स्ट्रेटजी आई फील. मतलब इफ आई कैन गो बैक इन टाइम एंड डू दैट, आई वुड डू इट completely differently and make it successful. But उस समय मेरे पास नहीं था. देन आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोचेस कि भाई आई नीड समबडी फर्स्ट ऑफ ऑल टू लर्न फ्रॉम. एंड वहां से धीरे धीरे आई लर्न फ्रॉम बिली जीन. there's this guy Right, from right, San Billy. Diego. Yes, yes, So yes. he is a fantastic copywriter. वहां से मैंने कॉपी राइटिंग, मेटा एड्स, यूट्यूब एड्स ये सब सीखा. एंड उसके बाद देन आई स्टार्टेड टीचिंग whatever I learned. वहां से पैसा बनाना शुरू किया, और ऐसे ऐसे करके, because as I mentioned that maid's daughter really had helped me out to Yes. understand one skill that I have. He complicated. I'm a good storyteller, so that's Right. what So came out, that and we I was know, like, we have seen in Uno. UFC founders. जो so भी अपना इवेंट हुआ था, we have seen that. so I just wanted to use that. So I was like, okay, I'm going to use the skill and try my level best to educate the world with edutainment content. अब चाहे वो in the form of courses हो, जैसा भी हो, मैंने उस तरीके से शुरुआत करी. Once I started doing well for my program, where I started getting students, people started recognizing. They're like, यार हमारे brand के लिए भी कर लो. Turns out it became a digital marketing agency also. फिर COVID आया. COVID. Then COVID के बाद again the good thing is I had two businesses. Okay. तो जो edutainment content था, it spiked like anything. मतलब COVID was one of my favorite times. Yes, COVID is a, I will say, even my partner says it is a blessing in disguise. Yeah, absolutely. For क्योंकि some people who actually knew what to do with that time, they have grown massively. Others वो यही कहते रह गए कि भाई कोविड हो गया, मैं बर्बाद हो गया. अरे कई सारे लोग लूडो वूडो खेल रहे थे. आई वाज लाइक कोई तो होगा जो सीरियसली कुछ तो कर रहा होगा, कुछ प्रोडक्टिव. So I Right. started off my mastering copywriting a course. I'll just tell you, by the way, I was in Amity, Okay. and the first company I got into was HCL. Just to give you a basic idea that HCL का जो फ्रेशर का पैकेज होता है ना एक MBA के लिए, it's 4.75 lakhs. Okay. I was consistently making that per month during COVID time all alone. Wow. So that was I totally what you are saying, I totally relate with the same journey. मैंने भी पहला स्टार्टअप स्टार्ट किया था ऐसे ही जोश में. पैसे फूक दिए 2 लाख रुपए, गिर गया बिल्कुल ही. देन आई बिकेम अ सेल्फ मेड मैन. मैं भी कोच ढूंढा, फिर गया दिल्ली, काम किया. पैकेज मेरा भी ऐसे ही लगा था, मेरा 4.5 का लगा. फिर कोविड में मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की. सो आई टोटली रिलेट विद दिस जर्नी. वी हैव गॉन थ्रू एंड सिमिलर काइंड ऑफ भाई स्टफ. सही में. एंड मेरा तो इंडस्ट्री वाज हॉस्पिटैलिटी. अब सोचो, हॉस्पिटैलिटी कोविड में खत्म ही हो गया था ना. खत्म हो बट गया. लकीली आई हैड दिस थिंग, तो मैं इस पे पिवट करके मैंने इस पे ज्यादा फोर्स लगाया. जैसे ही कोविड खुल गया, देन वो बिजनेस वापस पकड़ने लग गया. इवेंचुअली आई गॉट बोर्ड ऑफ द होल सर्विस मॉडल. So we tied up with a company, created our own application on Android and iOS, and इसको अच्छे से करा. Then I realized that भाई after the whole cancer journey थोड़ा चक्षु खुले दिमाग के कि और क्या कर सकते हो, you know. Like in my head it is more like कि शायद ऊपर वाले की तरफ से एक एनर्जी है, यूनिवर्स की तरफ से एक कॉल आया कि भाई you are made for bigger things, you have to do something bigger than this. Right. That's where I re-strategized the entire thing, and I was like, I'm going to do this now. So वो UFC is the start of that. Okay, got it. हाँ, So that ये is पूरा हुआ. basically after cancer you started it. Yeah. Okay. So which year you got diagnosed with cancer? Last year. Last year. So it must have been a really hit. Like मेरे को पता चल जाए मैं तो काफी वो हो जाऊं कि ये क्या होगा. And you realized it in stage 2, right? Yeah, stage 2. Okay. तो ऐसा कोई सिम्टम कोई खास था नहीं. इट वाज देयर वाज नो सिम्टम. दिस इज समथिंग व्हिच आई वेरी स्ट्रांगली रेकमेंड पीपल यार. जब भी थोड़ा सा भी लगे ना कुछ बीमारी है, कुछ है यार, चेकअप प्रॉपर्ली कराना. एंड आई टेल यू व्हाई, बिकॉज मेरे यहाँ यही प्रॉब्लम हुई थी. एवरीबडी यू नो, लाइक हमारे इंडियन हाउस होल्ड में थोड़ा सा रहता है कि अरे डॉक्टर तो बस पैसे खाने के लिए हैं, यू नो, नो नीड टू गेट इट चेक्ड अगेन एंड अगेन एंड दिस एंड दैट. एंड ठीक है, होते भी होंगे, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई दैट. बट मेरे अंदर एक कीड़ा था कि नहीं, मुझे तो जानना है व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. एंड ये चीज बाकी जगहों पे नहीं थी. बाकी जगहों पे ये सब, मतलब बाकी मेरे घर के सारे लोग वो लाइक कि अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. बिकॉज मुझे क्या हो रहा था, बाइनोक्यूलर डिप्लोपिया हो रहा था. तो मुझे दो क्यों दिख रही है हर चीज. मतलब एवरीथिंग जैसे जैसे मैं ऐसे ऐसे करता हूँ तो मुझे वो ना धीरे धीरे और वो स्पेस बढ़ता रहता है, दो, और वो दो दिखती हैं जो एक चीज है.
एंड जिसके कारण मैं ड्राइव नहीं कर पा रहा था, एंड आई वाज लाइक समथिंग इज रॉन्ग, एंड दे वर लाइक नहीं होता है, हेडेक हो रहा होगा, डोंट वरी। ये वो एमआरआई कराया, आई क्लिनिक चला गया, हर चीज करा लिया, एंड सीएसएफ हुआ। इट वाज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। एक नीडल तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, तुम्हारे ब्रेन से फ्लूइड निकालता है जो पूरे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में ट्रैवल करके आता है, वो कराया। लॉट ऑफ थिंग्स वर डन, कुछ नहीं निकला। फिर पता कैसे चला? वो मेरे अंदर कीड़ा था, नहीं कुछ तो है। तो आई वाज लाइक नहीं कुछ तो है। डॉक्टर्स, आई डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं लग रहा, न्यूरोलॉजिस्ट ने बोला कुछ नहीं लग रहा। आई वाज लाइक नहीं कुछ तो गड़बड़ लग रही है। लाइक ठीक है, फिर एक सिटी स्कैन और करा लेते हैं। सो दे डिड अ सिटी स्कैन, एंड तब जाके यहाँ पे एंड यहाँ पे लिम्फ नोड्स दिखे। जब उसकी बायोप्सी हुई तब जाके पता चला कि भाई दिस इज हॉजकिंस लिम्फोमा। इसको कंफर्म करने के लिए एक एक्सिजन हुआ, तो मेरा एक गर्दन काट दिया गया यहाँ से, उससे निकाला गया पूरा। फिर उससे और कंफर्मेशन मिला, फिर एक पेट सिटी हुआ, तो फिर फाइनल पता चला कि हाँ भाई है। अब बिफोर आई कुड फील एनीथिंग और आई कुड बी इन शॉक लुकिंग एट माय पेरेंट्स, आई वाज मोर स्कैर्ड। तो राइट। मतलब आई वाज द विक्टिम बट आई हैड टू कंसोल। पेरेंट्स तो वैसे भी दे So लव they अस, got very worried, and बहुत especially सारी my चीजें। mother. She got extremely worried. My father got into a whole different zone. तो ठीक था यार। इट वाज अ मतलब द ओनली थिंग इज, लोगों को लगता है कि यार कैंसर इज सच अ बिग थिंग, एंड मतलब मूवीज में दिखाते कैंसर मतलब मौत। राइट। ठीक है, मतलब दैट इज देयर अ आर थ्री थिंग्स दिखाएंगे कि हाँ कैंसर, अगला टकला हुआ है, थर्ड में मर गए। मतलब दिस इज द थ्री साइन, मतलब थ्री स्टेजेस में दिखा देते हैं। ऐसा नहीं होता। द ओनली वे टू क्योर कैंसर इज अर्ली डायग्नोसिस। तो मेक श्योर कुछ भी हो, डिग डीपर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज, क्यों हो रहा है। जो ज्यादातर लोग नहीं करते, टू बी ऑनेस्ट। दे जस्ट लाइक भागते हैं कि कुछ निकल ना जाए। अरे किससे घबरा रहे हो, फिर जब निकलेगा तब तो कुछ फिक्स ही नहीं हो सकता। तो कुछ फिक्स नहीं होगा। एनीवे हाँ, मतलब कीमो वाज अ डिफिकल्ट टाइम। इट्स वेरी पेनफुल, बट पेनफुल इन द सेंस यू फील लाइफलेस। बट आई गॉट अ वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स। एंड मैं बिजनेस उस समय नहीं कर रहा था, मैंने स्टॉल कर दिया था। एंड आई गॉट वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम माई टीम एंड एवरीथिंग, एंड उस समय आई कुड नॉट वर्क ऑफ कोर्स। तो राइट। आई वाज जस्ट रीस्ट्रैटेजाइजिंग कि ठीक तो मुझे होना ही है, तो जब ठीक होगा तब क्या करूंगा। आई वॉज मोस्टली वरिड अबाउट दैट कि क्या करना है मुझे, एंड आई वॉज लाफिंग अलॉट। दैट रियली हेल्प मी इन माई जर्नी। So I would surround myself with friends and family, and I would ask them, please don't lecture me, don't feel bad for me. Sit down, let's talk, let's have a smile on each other's face, and I should smile. That was the focus, ओके। and that's what I did, and it helped me get out of it not that painfully. मेक सेंस, या आई थिंक, या yeah, even in the event I saw the way you kept the audience engaged, kept like it was not a serious kind of a event कि आए हैं बैठ के सुन रहे, it was more engaging, so yeah, I यार felt that आई in the वॉश होता है यार वो इवेंट्स, आई फील कि correct, जो बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, मतलब वो बहुत बड़े लोगों के लिए ठीक है। yeah, आई बिलीव आई वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्ली स्टेज स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, एंड इन जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, आई डोंट थिंक कि ये फ्लैशी आई वॉशिंग इवेंट्स का कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस वहां पड़ता है। आई रियलाइज दैट यार देखो, चार चीजें चाहिए हर एंटरप्रेन्योर को। नेटवर्किंग, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज द लोनलीस्ट स्पोर्ट ऑन दिस प्लैनेट। correct. आप अकेले हो इसमें। वो तो जब है। आप सक्सेसफुल हो जाओगे, एवरीबडी विल रन आफ्टर यू, बट स्टार्टिंग के जर्नी में यू आर ऑल अलोन, देयर इज नोबडी टू हेल्प यू आउट। तो नेटवर्किंग, कस्टमर्स, Correct. ब्रांड ट्रस्ट, एक ट्रस्ट बिल्ड करना, अथॉरिटी बिल्ड करना, एंड फोर्थ इज फंडिंग। Funding. तो ये चार चीजें चाहिए होती है, इसी चार के अराउंड बातें होनी चाहिए। बट इन मोस्ट इवेंट्स वही होता है, एक पैनल होता है, चार पांच लोग Panel बातें होगा, कर रहे होते हैं, आप बैठ के सुन रहे होते हो। इन मोस्ट केसेस इट्स वेरी थोड़ी बोरिंग, देर एंड में जस्ट बोर हो वेट कि कब जाओगे। खत्म होगा और नेटवर्किंग शुरू करें। That is mostly the case. So that's what we do. We try to forcefully, अगर आप introvert भी हो, आप आओ इस event में, and we will force you to engage somewhere or the other. It helps you in Yeah, even. that event on the stage calling everyone was really good, and it was a good idea, because else what happens is most people they don't want to volunteer, तो आते नहीं, because of course entrepreneurs are introverts as well, some of them are। मेरे को तो माय कॉलेज पुश्ड मी, एल्स वरना मैं भी इंट्रोवर्टेड रहता, तो मेरा कॉलेज ने पुश किया कि यू स्टार्ट गिविंग सेशंस टू स्टूडेंट्स, तो तब जाके मैं भी ओपन हुआ कि हाँ चलो, आई हैव द अरे कॉन्फिडेंस। बिलीव इट और नॉट, इवन मी, मैं दिखता हूँगा बड़ा एक्सट्रोवर्ट टाइप का आदमी, बट आई हैव बीन इन टाई इवेंट्स, एंड कौन कौन से इवेंट्स पे नहीं गया मैं, एंड आई वाज वेरी शाय। मतलब अगर मेरा एक कंफर्ट जोन है ना, तो आई कैन ओपन अप वेरी इजीली। बट जहाँ आई डोंट नो अ लॉट ऑफ पीपल, इट वाज राइट। सो फॉर्मल दैट आई डिडंट नो हाउ टू टॉक, तो मैं आधे टाइम तो चुप ही था। आई मेरे डिडंट नो साथ ऐसे व्हाट टू बैंगलोर और टॉक दिल्ली अबाउट। के इवेंट्स में होता है मोस्टली। मतलब इनिशियली बेसिकली मैं क्या करता था, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मैं पकड़ लेता था अपने एक दोस्त को, या मैं किसी एक को जानता हूँ जिसको मैं जानता हूँ, उसको पकड़ के पूरा इवेंट में उसी के साथ बिता लेता था।
And Correct. that was such a horrible thing to do, you know. That's It is. such a horrible thing to do, which one should not do. It's a big no. You should ideally go and talk to everybody for 5 minutes. That's the right way of networking. But I didn't feel comfortable, and I just wanted कि जो भी मैं networking event बनाऊंगा, ये प्रॉब्लम फेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग होते हैं जो जेन्युइनली उनमें पोटेंशियल होता है, बट उनका पोटेंशियल कभी निकल ही नहीं पाता, प्रॉब्लम Legal. बिकॉज दे आर इंट्रोवर्ट्स. Correct. Yeah, it हाँ. is a thing. Even I have struggled with it initially. जब तक मेरे को कॉलेज वालों ने पुश नहीं किया कि यू गिव सेशंस, तब तक मैं भी इवेंट जाता था. एक बंदा पकड़ लिया, भाई जहाँ तू जा रहा है मेरे को भी ले चल. So we have been there. अच्छा, like you have told that during the phase of cancer you were strategizing about कि अब आगे क्या करना है. So what once you came out of cancer, so उसके बाद how you started Okmo? Like अभी तक हमने Okmo के बारे में बात नहीं की कि उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई. We know about Uno School of Business. Yeah, Okmo means online CMO. Online CMO. Okay. ठीक है ना. Okmo means online CMO, where me, my firm, my team becomes an online chief marketing officer to your brand or to you, the owner of the brand. We don't work with the brand, we work with the founder. Okay. Makes sense. So it's a startup accelerator program जहाँ पे to simplify it हम क्या करते हैं, पहले we create a video which helps you differentiate your brand. कई लोग क्या करते हैं, मार्केटर आ जाते हैं, they are like, you know, we'll help you get sales. अरे कहाँ से sales? जब ब्रांड ही डिफरेंशिएट नहीं हुआ है तो सेल्स Right. कैसे ले आओगे भाई. बट वही है, बिकॉज मेनी आर मार्केटर्स, दे डू हिट एंड ट्राइज एंड एवरीथिंग. दैट्स द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट. दैट्स व्हाई यू डोंट नीड इतने अर्ली स्टेज में, आई बिलीव, मार्केट आप, यू डोंट नीड अ डिजिटल मार्केटर एज सच, यू नीड एन एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंडसेट. Correct. एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट चाहिए व्हिच हेल्प्स यू. So first stage is definitely, when it comes to this, it is creating a video. Second stage is giving that video the right channel using meta ads, because meta ads में आपको, अब वाई नॉट गूगल, वाई नॉट लिंक्डइन, कई लोग बोलते हैं भाई लिंक्डइन में पहली बार आपका DAU क्या है, डेली एक्टिव यूसेज क्या है, नहीं है ज्यादा. ठीक है. व्हेन इट कम्स टू गूगल में यू डोंट हैव द चांस टू डिफरेंशिएट योर ब्रांड, सिर्फ टेक्स्ट ही तो है. हाँ, वहाँ टेक्स्ट है. एंड Exactly. यूट्यूब में कौन ऐड देखता है? YouTube में हमें तो बस स्किप करने की लगी रहती है. वो That छोड़ो, मैं आपको एक छोटा ऐड देता हूँ. आप यूट्यूब में ऐड दिखे, बैक करो, फ्रंट कर दो वापस, correct. सारा ऐड चला जाएगा. इट्स अ स्मॉल हैक. हाँ. आई एम जस्ट, it doesn't make sense. So Yes, that's my point is that that is why meta ads, I feel, is the perfect go-to for most businesses. Not saying for everyone, but for most businesses. most business. And third stage is we do everything in front of them. कोई भी काम बैक एंड में नहीं होता. अब obviously yeah, we have a good portfolio. हमने पिछले 7-7.5 महीने में 185 क्लाइंट्स को क्लोज करा है. कौन करता है इतना? You know, normally a digital marketing agency cannot do, and we have the capability of catering to 1 lakh people also, 1 lakh entrepreneurs also if needed. Wow. So the Because system we is have a scalable. system in place. We have a system in place. You cannot do that. I need to be sleeping and making money. If I'm sitting and working, then I'm doing a job. Correct. How is it any different from a job? So this is something which Okmo enables me to do. But इसका मतलब ये नहीं है कि I'm not involved. I am involved, but I'm involved in strategic and creative part. I have a team who are even better than me at technical meta ads, for example. Somebody who's even better than me at editing the video. There is somebody who's even better than me, and then my role comes in terms of बहुत सारी चीजें. ठीक है. तो ये बेसिक 3 चीजें होती हैं, एंड उसके बाद देन प्रोडक्ट आइडिएशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आपका MVP या POC या मिनिमम वायबल प्रोडक्ट एंड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कैसे होता है, हाउ टू डू द यूनिट इकोनॉमिक्स ब्रेकडाउन. आपने चलो आपने ऐड तो लॉन्च कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लीड्स की क्वालिटी कैसी आ रही है, क्वालिटी कैसे इंप्रूव करना है, क्वालिटी इंप्रूव करने के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, हैव यू फॉलोड इट और नॉट फॉलोड इट. उसके बाद आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है. आप सारा ब्लेम मार्केटिंग में डाल रहे हो, पता चला आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज नॉट गुड. हु इज ऑडिटिंग योर सेल्स. सेल्स पे लोग खत्म करते हैं, सेल्स नहीं होता. क्लोजिंग इज अनदर थिंग. सेल्स एंड क्लोजिंग आर 2 डिफरेंट थिंग्स. सेल्स में आप पिच करते हो, क्लोजिंग में आप पैसा लेते हो. पैसा लेना इज नॉट इजी. मतलब लोग घबराते हैं कैसे लेना है, वो पार्ट कैसे आता है. आप LTV यानी लाइफ टाइम वैल्यू कैसे बढ़ा रहे हो एक कस्टमर का, ताकि वो रिपीट ऑर्डर्स आपके साथ करे. ब्रांडिंग लेवल पे, ऑन अ पेड मार्केटिंग लेवल, आप पेड ब्रांडिंग लेवल पे क्या कर रहे हो, कोलैबोरेशन लेवल पे क्या कर रहे हो, एंड ऑफलाइन लेवल पे क्या कर रहे हो, दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कैसे बना रहे हो, टीम किस तरीके से बना रहे हो, को फाउंडर कैसे कर रहे हो, अपना फंडिंग कैसे उठा रहे हो. लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स आर देयर. सो फॉर दैट, one agency cannot do. Correct. The Yes. right thing is, I'm not against agencies. I in fact empower agencies, but the right ones. Right. So abhi bhi, for example, if someone is like nahi, some people are control freaks. They're like nahi, मुझे सस्ता एजेंसी चाहिए, उससे मुझे 15,000 खर्च करके मुझे लाखों रुपए कमाने उनसे. ठीक है ना. एंड यू नो, हर रोज मैं कॉल करूं तो दे हैव टू बी अवेलेबल. उनके लिए तो वी आर डेफिनेटली नॉट देयर.
Makes आप sense. I totally relate with you on this. So when we started Cropsticle, मैं भी initially इसी तरीके से ऑपरेट करता था, बिल्कुल एकदम घुस के हर काम में. फिर आई फाउंड अ पार्टनर. तो उसने क्या बोला कि भाई एक काम कर, तू जॉब पे चला जा, मैं कंपनी चला लेता हूँ. मैंने कहा क्या बोल रहा है ये? कंपनी तो मैंने स्टार्ट की. तो ही टोल्ड मी कि भाई ऐसे तो धंधा चलाना है, तू मेरे साथ आ जा. होट वो सो माय पार्टनर ही हैज 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटैलिटी सेल्स एंड मार्केटिंग. तो उसने भाई मैं तो 20 साल यही करता है, आई नो हाउ द थिंग्स वर्क, सो यू नीड टू लिसन टू मी. मैंने कहा चलो बताओ, ठीक है क्या कह रहे हो. अब मैं 20 साल का बच्चा, बीकॉम से हम्म निकला हुआ. मैंने कहा हम्म चलो बताओ क्या करना है. So then he started to put the system with us. So like how you have also positioned कि हम उन लोगों के लिए नहीं, हमने भी एक पोजीशनिंग सेट की हुई है कि हम कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट्स के साथ ही काम करते हैं और उसी में हम बढ़िया तरीके से काम करते हैं. तो बिल्कुल. टोटली वही, एंड एग्जैक्टली वही सही तरीका. इवन yesterday मैं सो a podcast will come in the second week of November. So he also runs a गवर्नमेंट के साथ मिलके कुछ स्टार्टअप का ये है उनका, जैसे अपना यहाँ हम्म पे ये टाइकॉन और आवाज का है. तो उस हम्म तरीके से उनका है. तो उन्होंने भी सेम चीज बोली कि मैं तो मैक्सिमम एजेंसीज आती हैं, वो तो उनको बस डील क्लोज करनी है. मैंने कहा काम किसी को करना नहीं है, डील क्लोज करनी है सबको. यही ना, यही तो प्रॉब्लम है. एंड अगेन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद देम आल्सो. देखो यार, सबको सबको स्टार्टिंग अपना में हाथ पैर मारने पड़ते हैं. अगर मुझ पे कोई भरोसा नहीं करता तो मेरा भी करियर की शुरुआत ही नहीं होती. एक सेंस. प्रॉब्लम उसकी नहीं है. टू हेल्प पीपल पर्सनलाइज, यस इट इज यूजफुल. राइट. बट वेयर वी कम इनटू द पिक्चर इज दैट आपको कौन सी एजेंसी चाहिए और उससे क्या काम करवाना है, वो भी आपको हेल्प चाहिए उसमें. करेक्ट. यू नीड टू नो हाउ टू चूज द राइट एजेंसी. यू नीड टू नो आपको इन हाउस टीम चाहिए कि आपको आउटसोर्स करना है, क्या पार्ट आउटसोर्स करना है. बिकॉज देन यू हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो वो मीट नहीं कर पाते. एंड एवरीबडी, देखो यार, आई गेट इट, लॉट ऑफ पीपल डू दिस, दे ओवर सेल एंड अंडर डिलीवर. करेक्ट. जब ओवर सेलिंग एंड अंडर डिलीवरिंग होती है ना, वो एक ट्रस्ट ब्रेक होता है क्लाइंट का. कई जगहों पे उनको रेगुलर कम्युनिकेशन चाहिए, कम्युनिकेशन ब्रेक होता है तो ट्रस्ट ब्रेक होता है. ट्रस्ट ब्रेक हो ये जाता सारी चीजें होती हैं. हमारे में बहुत क्लियर होता है, हफ्ते में एक मीटिंग होगी एंड वी डू वन थिंग. आपका मेटा एड, आपका ब्रांड डिफरेंशिएट करके मेटा एड लॉन्च करके आपको कस्टमर दिलाएंगे आपके सामने. ठीक है ना. वी डू वन थिंग, बट वी डू दैट डैम गुड. It's very है. clear. We दैट are इज. not doing your social media management. We are not doing Google ad, LinkedIn ads. We are not doing all that. We are very clear. This is what we are doing. Now, what we are trying to establish, we are trying to get you find a product market fit. तो बहुत सिंपल है. अगर आपका बिजनेस अभी तक 10 लाख भी महीने का नहीं कमा रहा है, तो it is still at a hobby stage. And this can offend a lot of business people. But what I'm trying to explain here is, आप 5-6 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो या 2 लाख रुपए कमा रहे हो, you are still at a situation where you can shut it down anytime. राइट. You understand? So 10 lakhs जब हो जाता है ना, तो एक product market fit काफी हद तक बन चुका होता है. And then it is easier. So anybody who's under 10 lakhs, I'm there to help them out, and they need it. जितना early stage हो उतना better. मतलब I was talking yesterday to somebody, and he said that यार पर मेरा तो product भी नहीं बना. मैंने कहा even better, thank God. वरना आप 5 गलतियां कर चुके होगे, उसको करेक्ट करते करते मेरी पहले तो बैंड उसमें बच जाती है कि भाई उसको कैसे करेक्ट करना है. एंड इट्स नॉट इजी टू एग्जीक्यूट. देन आपका पैसा लग गया, आप तो अब उसी के assumption पे हमें कुछ करना पड़ता है. हाँ. जितना अर्ली आए उतना बेटर है. बट आप थोड़ा लेट भी आए हो तो इट्स नेवर द रॉन्ग टाइम टू डू द राइट थिंग, राइट. 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 तो ऐसे होता है ओवरऑल. नहीं, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. काफी क्लैरिटी के साथ ऑक्मो का विजन सेट है. तो जस्ट लेट अस टॉक अबाउट वन थिंग. You are also operating a business in Dehradun. I am also operating a business in Dehradun. It's a tier 2 city, and most people they keep on asking me this question. मैंने तो कई बारी पॉडकास्ट पे आंसर किया है कि आप देहरादून में कंपनी को ऑपरेट कैसे करते हो? हाउ डू यू फाइंड द राइट मैन पावर? फाइंड द राइट मैन पावर. करेक्ट. यार जैसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि कैसे रिटेन करते हो, स्टाफ मिलता है आपको नहीं मिलता. लाइक आई हैव क्लाइंट्स फ्रॉम बैंगलोर, सो उनका सबसे पहले सवाल होता है भाई मैं तो बैंगलोर में बैठा हूँ, तो मैं देहरादून में कैसे बंदा मिल जाएगा जो मेरा काम डिलीवर कर दे. सो आई देन हैव टू टेल देम कि मैंने इस तरीके से ये किया है, हायर लाइक दिस. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? क्योंकि लाइक काफी टायर 3 टायर 2 टायर 1 वाले एंटरप्रेन्योर्स अभी देख रहे हैं, तो ये सबको लगता है कि यार मैं अगर मैं अपने शहर में अपने खुद के घर में अगर बिजनेस खोलता हूँ तो मेरे को शायद राइट मैन पावर ना मिले. मैं देहरादून से हायर नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट. आई डोंट ओके. हायर फ्रॉम देहरादून. देहरादून में देखो, इट्स रॉन्ग टू लेबल देहरादून इन करेक्ट. दैट केस, बट देहरादून थोड़ा सा लेड बैक सिटी है. यस. करेक्ट. एंड टाइम्स आर चेंजिंग. देखो एक टाइम था वेयर यू नो एंटरप्रेन्योर लाइक यू कैन हायर पीपल क्योंकि उनको नीड थी कि भाई सर एक जॉब एक जॉब. आजकल ऐसा टाइम नहीं है. यू नो दे आर ऑन लिंक्डइन एंड वो आपसे बात अच्छे से कर रहे हैं, बट वही रिसोर्स 10 और कंपनियों से भी बात कर रहे हैं. करेक्ट.
ठीक है, तो दे हैव ऑप्शंस। वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं इज अनदर थिंग। प्लस एथिक्स की भी बहुत कमी है आजकल। Yes, ethics आई is वेरी स्ट्रांगली बिलीव जेंजीज में एथिक्स की कमी है, बट क्रिएटिव बहुत है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ आप क्या हायर कर रहे हो। तो जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, वो मैं देहरादून से हायर करता हूँ, बिकॉज देहरादून हैज अ वेरी गुड हब, इट्स अ वेरी गुड हब फॉर क्रिएटिव पीपल। थोड़ा कमिटमेंट लेवल अभी भी उतना अच्छा नहीं है, नहीं बिकॉज है। उस तरीके का Professionalism एनवायरमेंट, सीरियस is a lack एनवायरमेंट of नहीं मिला यहाँ पे, professionalism as राइट? right. However, but जो टेक्निकल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई वांट पीपल हु कैन रन मेटा एड्स एंड ऑल, यहाँ से तो मैं बिल्कुल हायर नहीं करता। दे आर ऑल फ्रॉम बैंगलोर, मुंबई, नॉट फ्रॉम हियर। ठीक है, कोई मिल जाए यहाँ पे, नथिंग लाइक इट। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट समवन आउट हियर, बट बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने कितने एड्स चला दिए, कितने मैंने कर दिए कि भाई कोई अच्छा, आई हैव गॉटन अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल, बट बात नहीं बनी। वेरी डिफिकल्ट। क्रिएटिव लोग मिल गए। आई हैव गॉट अ वेरी Creative. गुड वीडियो एडिटर। अभी जो फॉर एग्जांपल रेबेका को ले लो, शी वाज द वन हु इज मैनेजिंग द इवेंट, बट Yes. रेबेका का ये प्राइमरी जॉब नहीं है। रेबेका इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी इन हर करंट जॉब। ये तो शी इज डूइंग एज अ हॉबी। Okay. सो आई गॉट अ पर्सन, अगेन शी इज वर्किंग वेयर, इट्स अ दिल्ली बैंगलोर बेस्ड कंपनी। Okay. ठीक है, तो वो ऑलरेडी उस लेवल पर है, प्रॉपर एक्सपीरियंस है, तभी वो एग्जीक्यूट कर पा रही है उसको। वो अच्छा खासा कमा रही है। मतलब हमारी कम्युनिटी में मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा कम्युनिटी के मेंबर से ज्यादा तो वो कमा रही होगी इन टर्म्स ऑफ सैलरी। But she's helping out, and that's a very big thing. Right. She's helping out, she's here, she wants to do something, she believes in the vision, she's the part of the team. तो ऐसे टाइप के लोग मिले हैं मुझे। कुछ लोग ऐसे मिले हैं जो बहुत बड़े बड़े कंपनीज में, बट वो दे आर सपोर्टिंग अस। तो उनको क्या बेनिफिट देना है, उसकी जगह उनको क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको समझना कि हाउ आर वी कॉम्पनसेटिंग फॉर देयर टाइम एंड एक्सपर्टीज। वो क्रिटिकल रहता है। तो आई ट्राई टू हैव द राइट पीपल। पहले मैं क्या करता था, जस्ट हायर चीपर रिसोर्सेज को ट्रेन करो, बट भाई दैट्स अ नहीं हो हेडेक। सकता। इवन आई हैव ट्राइड दिस। मैं क्या करता था, इंटर्न्स लेके आता था, 3 महीना ट्रेन किया, जब तक वो पता चलेगा मुझे क्या है, तब तक मेरे को रियलाइज होगा इतना टाइम वेस्ट हो गया। एंड नहीं, ऐसा नहीं है नहीं चलता, बट भाई एक टाइम के बाद आपको आगे बढ़ना पड़ता है। इसमें यू हैव टू हायर गुड टैलेंट, एंड टैलेंट की सही तरीके से टैलेंट हायर करना इज नॉट इजी। सो आपके क्या, मैं अगर पूछूं, व्हाट आर द की थिंग्स यू सी इन अ टैलेंट बिफोर यू हायर देम? लाइक ये स्टार्टअप फाउंडर्स का एक बहुत मेजर इशू है कि यार मेरे को सही टीम नहीं मिलती। यार देखो, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मैं डिपेंड्स ऑन द जॉब एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। अगर कोई मेथोडिकल वर्क होता है ना, तो मैं मेथोडिकल वर्क में यूजुअली, एंड मैं बहुत कैंडिडली बोलूंगा, किसी को ऑफेंसिव लगे तो लगे, बट नहीं, जो हम है वो है। चाहते ही यही है, वी वांट एवरीथिंग टू बी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। मैं ऐसी बात करता हूँ, सीधी बात है, एंड आई बी वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट इट, कि अगर मुझे कुछ मेथोडिकल वर्क करवाना होता है, तो देन यू हैव अ बिगर पूल, वाइडर पूल ऑफ पीपल। ठीक है, तो वहां पे आई लुक फॉर कमिटमेंट मोर देन स्किल। राइट। ठीक है, सो देयर इज अ कमिटमेंट एंड स्किल का रेशियो। तो मैं मानता हूँ इस चीज में कि अगर हाई कमिटमेंट है एंड हाई स्किल है, परफेक्ट मैच ले लो उसी समय, पर वो मिलता नहीं है। मिलता नहीं है। देन एक होता है हाई कमिटमेंट बट लो स्किल, ले लो, कोई नहीं, इफ दे कोई दिक्कत एग्जिबिट गुड कमिटमेंट कि हम मेहनत करने को तैयार हैं, सीखने को तैयार हैं, और ऑब्वियसली आप पूछोगे तो सभी बोलेंगे हाँ, तो यू हाँ, हैव टू बी क्लेवर क्लेवर। अबाउट इट, राइट? तो उनको भी ले लो। इफ दे हैव लो कमिटमेंट एंड हाई स्किल, इनको मैं कहता हूँ दे आर द स्नेक्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ये सांप होते हैं। सांप है। ये क्या करते हैं ना यार, ये आपका आपका धंधा ये, मतलब मतलब दे आर वेरी गुड एट देयर वर्क, सो दे नो। हम्म। तो ये क्या करते हैं कि खुद तो जाएंगे कंपनी छोड़ के, पर ये अपने साथ दो तीन को और ले 2 दिन जाएंगे, को और ले जाते हैं, चूस जाते या हैं। फिर पॉइजन फैला के चले जाएंगे, एक टॉक्सिक कल्चर क्रिएट करते हैं कि ये पता नहीं क्या कर रहे हो, ये कैसा है, ऐसे करके। एंड देन कम लो कमिटमेंट नो स्किल। अब लो कमिटमेंट और लो स्किल है, तो भाई सीधा रफा दफा करो, उनको करने दो, उनको जो करना है यार। मेरा ये मानना है कि यार देखो, आई हैव बीन टॉट दिस वैल्यूज दैट आई हैव रिसीव्ड इज कि यार तुम छोटा और बड़ा कोई आदमी नहीं होता है, सिंपल होता है। तुम झाड़ू भी मार रहे हो ना, तो झाड़ू ऐसा मारो कि तुमसे बेहतर झाड़ू कोई दुनिया में नहीं मार सकता। करेक्ट। दैट इज कमिटमेंट। या। कमिटमेंट होना चाहिए। स्किल तो अपने आप, स्किल इज लर्नेबल, अडेप्टेबल, यस। बट नहीं, लो कमिटमेंट लो स्किल लोग, आउट करो। मेजर थिंग इज तो जो हम भी डेली बेसिस पे फेस करते हैं, विच इज कमिटमेंट। कि हाँ, रिसोर्स वैसा ढूंढना जो कमिटेड हो, दैट इज बहुत अ डिफिकल्ट होता है। बहुत यू हैव टू आस्क द राइट लाइन ऑफ क्वेश्चंस, and then still also you can make an error. How यस। do you get to know? मतलब आजकल एक एम्प्लॉय ढूंढना, एक टीम मेंबर ढूंढना, सबसे डिफिकल्ट तो को फाउंडर ढूंढना होता है। राइट।
को फाउंडर मैं कह रहा हूँ शादी कर लो, तुम्हें शादी बीवी मिल जाएगी, बट को फाउंडर नहीं मिलते। Co-founder though. I have also made mistakes. So right now with my current partner, he is my third partner. तो मेरा जो original actual co-founder था, तो once we started making some money, we reached 3, 4, 5 lakh a month. So that's where he left. तो देखो 3 शादियां करके आपको पता चला। so वही है, gone through many ups and downs, तब पता चला कि भाई अच्छा ऐसे ये नहीं ये देखना था, यहाँ तो क्या हाँ। देख लिया। या makes sense परफेक्ट है ये तो अच्छा अभी इसमें एक बात बताओ, मैंने एक और चीज लिखी थी विच दैट वी विल बी डिस्कसिंग, सो हम्म। इम्पैक्ट्स एंड अचीवमेंट्स मैंने इसको लेवल किया। तो लाइक यू हैव डन विद ऑकमो, यू हैव डन विद अपना यूएफसी का जो फाउंडर्स कम्युनिटी है, सो यू हैव सम पोर्टफोलियो एज वेल, राइट? आपने 17 मिलियन प्लस जनरेट किया, सो उसका आपके ओवरऑल बिजनेस पे और लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, लाइक एज अ या फाउंडर? मैं मनी रेवेन्यू समझा, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, मैं ना पहाड़ी हूँ। हम्म। तो मैं मानता हूँ, अब मैं बता रहा हूँ, मेरे ना फैमिली में पहाड़ी साइड है एंड गोरखाली साइड है। माई मदर इज गोरखाली, माई फादर इज गढ़वाली। एक दिन मैं ऐसे ही पूछ रहा था, छोटा था मैं, तो मैं नाना नानी से पूछा था कि यार हम लोग ये ना पहाड़ी ना गढ़वाली ना गोरखाली, ये लोग अच्छे बिजनेसमैन नहीं होते क्या? यू डोंट नो अ सिंगल बिग गढ़वाली बिजनेसमैन और अ बिग गोरखाली बिजनेसमैन, नो, लाइक वी डोंट नो। मतलब हाँ बड़े होंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक यू अंडरस्टैंड, बिलियनियर लेवल पे, राइट नॉट राइट। मिलियनियर लेवल पे। मिलियनियर वाले मिल जाएंगे, प्रॉपर्टी वॉपर्टी पूछता नहीं कुछ, बट आई एम सेइंग बिलियनियर लेवल पे तो नहीं मिलते ना। तो शायद ये हमारे जीन्स में है, शायद हमें सिखाया ऐसा गया है, बिकॉज पहाड़ियों में ज्यादा होता है कि यार नहीं आईएएस, हम्म। नहीं आईटी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब, यू नो इस टाइप का। राइट। एंड गोरखालियों में आर्मी, आर्मी में चले जाओ। तो थोड़ा सा इसके कारण क्या होता है कि आपका थोड़ा सा लाइनअप ढंग से नहीं बन पाता है कि आपको कैसे क्या करना है। तो अचीवमेंट की परिभाषा मेरा, टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा क्योंकि वो जेनेटिक है, तो मैं पैसों से अचीवमेंट नहीं गिनता हूँ। हम्म। पैसों से इम्पैक्ट पता चलता है कुछ हद तक, एंड इट्स गुड टू मेजर एंड कीप स्कोर्स, बट I'll share something with you which might sound very ridiculous and could sound stupid also, but that's my vision. Now, I don't know how many people can relate to that, but it's a very big vision. And मुझे हमेशा से बोला गया है कि you know लक्ष्य बहुत ऊंचा रखो, जितना ऊंचा रख सकते हो उतना ऊंचा रखो. So I've done that, and I've seen my on your LinkedIn profile you have mentioned that helping I think 10,000 businesses by 2025 and creating millions of jobs. oh, this is much bigger than that. I'll explain. So Okay. vision, my vision is I want to make entrepreneurship the fifth pillar of democracy. Okay. What In does that India or mean? like everywhere? India, in India. India, I can't control everywhere, but I want it to be the fifth pillar of democracy. Now, what does that mean? आपका upper, lower house, judiciary, and fourth pillar आपका media बन जाता है. Right. So fifth pillar democracy का entrepreneurship में क्यों कह रहा हूँ? Let me explain. I believe that the problems that have to be solved cannot be left to government servants, cannot be left to politicians. प्रॉब्लम एक्चुअली देश को सॉल्व करने वाले साइलेंट पार्टनर्स आपके बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स Makes होते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, एंटरप्रेन्योर्स को देसी लैंग्वेज में बोल दिया जाता है, अरे धंधा ही तो कर रहे हो यार, ये नहीं तो तो कर रहे। कुछ भी कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। एंड ये बहुत खराब माइंडसेट है, बिकॉज उनको वो रिस्पेक्ट, वो दर्जा नहीं दिया जाता जो बाकी प्रोफेशंस में। आईएएस बनते हो तो Yes, पावर एंड दिस एंड दैट, I व्हाट relate अबाउट एन to that. एंटरप्रेन्योर हु डज एवरीथिंग? आपकी सारे जॉब, सबको जॉब चाहिए, जॉब दिलाने वाला कौन है? एंटरप्रेन्योर। पर उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। मतलब दे टेक सच सो मच रिस्क, आपको कैपिटल का रिस्क लगाना है, सब अपना ही तो लोन जाता है। भाई एम्प्लॉय का क्या है, उसका तो जॉब जाएगा, बट Right. एंटरप्रेन्योर पे लोन है, लाइबिलिटीज है, इतने लोगों की लाइफ उस पर डिपेंडेंट है। More और of उसको, blood, sweat, if you yeah, see. it's horrible, and Horrible. they are solving the actual problems in the society. They are looking for problems, solving it, and then rotating the economy. पर उनको कोई दर्जा नहीं दिया जाता। सो आई वांट टू मेक श्योर दैट अपने एफर्ट्स से, आई वांट टू मेक श्योर दैट एंटरप्रेन्योर्स आर द रियल रॉक स्टार्स, एंड दे शुड हैव अ कैबिनेट लेवल पोजीशन. Hmm. मतलब दे शुड बी कैबिनेट मिनिस्टर्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. आई बिलीव रतन टाटा शुड हैव बीन वन. दे शुड हैव ऑनर्ड हिम विद वन ऑफ दोस पोजीशंस. Correct. बट ये नहीं होता, और ये यहाँ ही नहीं, कहीं नहीं होता कहीं पे भी पूरे नहीं दुनिया में. होता। Right. So that is the vision. अब वो बनाने के लिए the mission is to create the largest entrepreneurial network on this planet. ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब यूनिटी होगी.
राइट। पर अभी क्या है, एंटरप्रेन्योर एक दूसरे में ही झगड़ते रहते हैं, भाई हाँ, स्मार्ट हो एक जाओ। दूसरे को कट करेंगे वो सब, वो कोलैबोरेशन बेसिस कंपटीशन पे कंपटीशन मोस्ट पीपल डोंट वांट टू वर्क, आई अरे लाइक देयर आर सम पीपल, सम डिजिटल मार्केटर्स होते हैं, आप तो मेरा बिजनेस काटने को तैयार। अरे भाई, मैं किसी का बिजनेस, भाई इतना बड़ा मार्केट है, नहीं, मैं इफ यू किसी का सी बिजनेस नहीं काटता। लाइक आप देखोगे तो आपका जो बिजनेस है उससे काफी हद तक मेरा भी बिजनेस सिमिलर है, बट मैं तो हाँ, नहीं आपको कंसीडर कर रही हूँ, मैं तो आपको पॉडकास्ट पे बुला रहा हूँ कि भाई आओ बात करते हैं। कोलैबोरेट, को क्रिएट, देयर आर सो मेनी कोलैबोरेट। थिंग्स वी डू टुगेदर, राइट? यस। आप भाई, हो सकता है देयर आर सम प्लेसेस आई एम नॉट गुड एट, मैं गूगल एड्स नहीं करता। इफ राइट। यू डू इट, आई विल सेंड दैट कस्टमर टू यू। देयर आर करेक्ट। सम, अब कलाकृति है, दे आल्सो इनटू डिजिटल मार्केटिंग, राइट? यस अनदर यस अनदर यस कंपनी फ्रॉम आवर यस। कम्युनिटी। आई वाज लाइक, यार तुम लोगों की शूट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आई एम हायरिंग यू फॉर पॉडकास्टिंग। परफेक्ट। बल्कि एक दूसरे को बिजनेस ही दोगे ना यार। बिजनेस ही दे रहे लर्न टू हैव दैट, एक दूसरे की हेल्प, एक दूसरे काटने पीटने में लगे हुए हो, क्या फायदा? मतलब द हो, ब्लड बात बना देते हैं अब तो एग्जैक्टली, एंड दिस इज वेरी क्रिटिकल, बिकॉज मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ, एंड मेरा जो पूरा कम्युनिटी बनाने का जो रीजन है वो यही है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम देहरादून। राइट। मेरी एक बार विजय विजय शेखर शर्मा से बात हुई थी, पेटीएम सी। ऑन पेटीएम, एंड बड़ा कॉमेडी, बहुत फनी हमारा इंटरेक्शन था। जस्ट शेयर दैट वी वर इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड एक इवेंट था, तो बहुत बड़ा इवेंट था, लाइक इट वाज अ वेरी बिग इवेंट, एंड अब उस समय ना पेटीएम, बिकॉज डिमोनेटाइजेशन, सॉरी, नोटबंदी खत्म हुआ था, तो नोटबंदी, ना, मतलब एकदम या ही डिमोनेटाइजेशन के बाद तो पेटीएम ने ऐसा स्काई रॉकेट करा, रॉकेट हुआ था। तो ही वाज अ रॉक स्टार एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दैट गाय इज फनी, दैट गाय इज हिलेरियस बाय द वे, ठीक है, एंड ही इज वेरी नॉलेजेबल एंड हिलेरियस। सो अब क्या हुआ, एवरीबडी वाज आफ्टर दैट गाय, एवरीबडी इज लाइक विजय शेखर, सारे सारे न्यूज रिपोर्टर, वो बेचारे को वॉशरूम तक जाने नहीं दिया, वो बेचारा मतलब पकड़ के खड़ा हुआ है, एंड एवरीबडी इज लाइक, अरे देर लाइक कि भाई, मतलब वॉशरूम में घुसा के ले आए, मतलब कैमरास, कैन यू बिलीव दैट? इट वाज वेरी, तो द फनी इंटरेक्शन वाज, आई वाज राइट नेक्स्ट टू हिम। जगह भी बढ़िया मिली। तो खड़े खड़े आई जस्ट सेड दैट it's a wrong time, I know, like the press has really annoyed you, but can I please have 5 or 10 minutes of your time once you're free? He's like, हाँ हाँ, मैं पीछे हूँ यहाँ पे, मेरा जी का इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप आ जाना। It was a very funny way to actually start. And he gave me 20-25 minutes. He gave me a good amount of time where we discussed a lot of different things. And एक न्यूज चैनल को तो उन्होंने रोक के रखा, उन्होंने कि रुको पहले खत्म कर रहे हैं. So very polite of him that he actually did that. And he told me one thing जो मेरे दिमाग में रह गया. मैंने बोला कि पेटीएम इंडिया में ही करेगा या बाहर क्यों कभी जाएगा, ये वो। इस लाइक देखो, मैं बाहर तब तक नहीं सोचूंगा जब तक मैं इंडिया को 100% पेनिट्रेट ना करूं। He's like, मेरी लाइफ टाइम निकल जाएगा, बट आई विल स्टिल नॉट हैव केटर्ड, आई वुड नॉट हैव केटर्ड द पनवाड़ी इन अ टियर 3 सिटी, मतलब आई वांट टू गो देयर, एंड फैंटास्टिक थिंग इज डिड दैट, he's done that. He has done that very well. वो Soundbox पेटीएम का, it has changed life for Yeah. many of millions of vendors, और पेटीएम का loans woans, like I so we have one shop, we have rented it to a vegetable vendor, so I keep on talking to him, so वो Yeah. बताता है मेरे को, मैं ऐसे 5 लाख का लोन ले लेता हूँ। हाँ, अर्लियर क्या ये था, जरूर है, देखो अब यूपीआई आ गया, मल्टीपल थिंग है, उन्होंने ओवरटेक कर दिया जो भी, यार पेटीएम ने इसको एक बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था, टू बी ऑनेस्ट। इकोसिस्टम उन्होंने शुरू किया, बिकॉज हाँ, इफ यू वी सी हैव टू अप्रिशिएट, एप्लीकेशन इट बिकेम अ सुपर ऐप। एग्जैक्टली, एंड ये चीज मेरे दिमाग में रह गई, तभी मैं, लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल सेइंग, यार देहरादून में क्यों कर रहे हो, व्हाई नॉट डू इट इन बैंगलोर, बैंगलोर में तो और अच्छा चलेगा, दिल्ली गुड़गांव में बहुत अच्छा चलेगा, जाऊंगा, हर जगह जाऊंगा, पर आई वांट टू फुल्ली पेनिट्रेट देहरादून फर्स्ट, उत्तराखंड भी नहीं, देहरादून फर्स्ट। देहरादून में भाई आप देखो, हाउ मेनी पीपल डू वी हैव इन द कम्युनिटी राइट नाउ, इफ आई जस्ट नॉर्मली, अराउंड 450 प्लस आई थिंक। oh definitely more than that, we have अभी मैं इसी में देख रहा हूँ, यूएफसी, we have 491 मेंबर्स इस समय, 491, राइट। ठीक है ना? 491 मेंबर्स हमारे पास बैठे हुए हैं सिर्फ देहरादून से, राइट। एंड मैं बता रहा हूँ, ये कुछ ही 1-1.5 महीने के अंदर की बात है, ये 1000 हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है? तो दिस मीन देयर दैट मेनी पीपल जस्ट इन देहरादून, व्हिच इज यू योरसेल्फ एट टियर 2 प्लेस। राइट, एग्जैक्टली। नहीं, मैं भी इसलिए देहरादून में, मैं भी इसलिए बैठा हूँ, लोग मेरे को ये कहते हैं, यू कम टू बैंगलोर, दिल्ली आ जाओ, बढ़िया हो जाएगा। यहाँ कौन देखेगा, फिर मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा बाहर से आके। मैं तो इसीलिए, मैं देखो यार, पहले तो मुझे अपनी जिंदगी में 5-10 साल बढ़ाने हैं, दिल्ली करेक्ट। नहीं जाना मुझे। आई हैव बीन इन दिल्ली, स्पेंट हाफ माय लाइफ देयर, वेरी गुड दिल्ली वालों, बहुत अच्छा है आपकी शहर, बहुत अच्छा शहर है, थैंक यू वेरी मच, आता रहूंगा बीच बीच में मैं, दोस्तों से मिलने के लिए, घूमने के लिए, बट बट लेकिन ट्रेन आई से। लव माय देहरादून, आई लव माय सिटी, आई लव द पीपल हियर, एंड इट्स nice, the weather is good, place is nice, fresh air,
and disaster proof. राइट करेक्ट डिजास्टर नहीं वो So तो that आई टोटली एंड प्लस यू राइड एज वेल सो उसके लिए तो देहरादून से बेटर कोई जगह नहीं है आप प्लेन्स पे चले जाओ माउंटेन्स पे चले जाओ नदी के पास चले जाओ यू कैन गो एवरीवेयर I had a word with Dhamiji. When he ओके became the chief minister, the first night we had dinner together. There's a photo. ओके And मैंने एक चीज नॉर्मली हमारी बात चल रही थी तो देयर वाज वन थिंग आई मेंशनड कि वी शुड हैव अ सिलिकॉन वैली इन उत्तराखंड. बैंगलोर को माना जाता है कि इंडिया सिलिकॉन वैली, इसको चेंज किया, फिर कहीं और आया. हीरा हीरा मंडानी का कौन सी जगह है वो, हीरा मंडी, हीरा आई डोंट नो व्हाट प्लेस इज दैट इन मुंबई. उसको बोला गया कि वो सिलिकॉन वैली बन फिर रहा है. अब गिफ्ट सिटी सूरत, को नाउ दे आर now सेइंग सूरत इज बिकमिंग गिफ्ट a सिटी big hub, right? Hub around that. उत्तराखंड क्यों नहीं बनता? उत्तराखंड को तो ऐसे गरीब सा स्टेट माना जाता है बाहर से, सिर्फ तीर्थ यात्रा के लिए. सिर्फ तीर्थ यात्रा के लिए लोग आते बाकी हैं कुछ अपने नहीं. जीवन के बस 4 धाम किया और फिर बस Precisely, मतलब I was like, why not? So think about it. Normally, just think about it. What was the last big brand that came out of Uttarakhand? I'll अभी tell you. रिसेंटली सनफॉक्स जाके एक बड़ा ब्रांड जो Yeah, निकला again, understand the league at which I'm talking about. The एग्जैक्टली big brand, like बिग very, very तो big कोई भी brand. नहीं निकला अभी तक उत्तराखंड से if you say नहीं निकला है, मैं बताता हूँ. Last was पतंजलि. पतंजलि या पतंजलि कब बना था? 2004 या 6 में. 2004-6 में उससे पहले 1991 या 1992 में आया था हिमालयन. ओके या हिमालयन वेरी बिग ब्रांड. राइट दोनों के दोनों देखोगे तो आयुर्वेदिक या उसकी तरफ ही हिंट करता हुआ. बिकॉज अगेन वो हमारे कल्चर से मैच करता है. नॉट अ प्रॉब्लम, किसी भी जॉनर का हो. बट what is the excuse we have today? We have internet, fantastic internet in Dehradun. We have good infrastructure, good connectivity to places like Delhi. Airport hai. What is the excuse? Like we can't just depend on the government कि government करेगा ये करेगा. अरे what excuse is there यार? राइट Do something about it. तभी this entire community has started. I was like done enough of complaining and self-victimizing for people. हाय राम, हमें funding नहीं मिल रही, grant नहीं. अरे यार तुम बाहर जाओ, करो कुछ. You know, now it's time to bloody do something about it. And then I was like, yeah, let's create a community. Let's help people out as much as possible. सबकी तो मदद नहीं कर पाएंगे, criticism हर तरफ से मिलेगा, but let's try our level best. How can we help people? How can we help entrepreneurs? And first important thing is unity. जब एक बड़ी यूनिटी बन के आएगी तभी गवर्नमेंट सुनेगी, सरकार तभी सुनेगी आपकी बात. तब जाके आपका एक रिप्रेजेंटेटिव फंड्स मैनेज करेगा. अभी कौन फंड्स मैनेज करते हैं? आईएएस ऑफिसर्स. आईएएस ऑफिसर्स हाँ आप उनको अगर कैसे पता देखो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है? एग्जैक्टली अगर आप अभी भी देखो एक बारी मेरे ख्याल से 1 या 2 बारी गवर्नमेंट ने स्टार्टअप से रिलेटेड इनिशिएटिव लॉन्च किया. स्टार्टअप उत्तराखंड का जो इवेंट हुआ था एक बारी यही हुआ था आईएसबीटी के पास में होटल में एंड एक बारी आई थिंक यूपीएस के साथ कोलैबोरेशन में. उसके बाद तो नो इवेंट हैपेंड रिलेटेड टू स्टार्टअप अरे इवेंट भी हो गया, उसका रिजल्ट क्या है? कुछ There was भी नहीं. Invest उत्तराखंड. अब देखो, आई डोंट वांट टू पुट एनी इवेंट डाउन. द इनिशिएटिव्स हैव बीन गुड. देखो यार, लॉ बनता है, लॉ बहुत अच्छा बनता है. हमें लगता है कि लॉ ही बेकार है. लॉ नहीं, इंडिया का लॉ इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. करेक्ट उसका बट एग्जीक्यूशन तो इम्प्लीमेंटेशन नीचे लेवल किसी तहसीलदार को करना है ना. करेक्ट उसका एग्जीक्यूशन नीचे वाले लोगों को करना नीचे होता है जो वाले गलत कर जाते हैं कहीं ना कहीं. तो सरकार का थॉट प्रोसेस खराब नहीं है. उत्तराखंड इज वेरी एडवांस दैट वे, वेरी नाइस. बहुत चीजों में दे आर प्रोएक्टिव और हर चीज करा है. चाहे वो होम स्टे ले लो. विद देम तो आप वो समझ बेटर थॉट हाँ, प्रोसेस समझो. देखो यार, वी हैव टू अंडरस्टैंड अ बेसिक थिंग यार. देखो जो सरकार में बैठे हैं ना, वो यहाँ बैठे हैं, एक टावर के टॉप में बैठे हैं. हमें यहाँ पे करेक्ट बॉटम, हमें इतना दिख रहा है बस. सरकार को पूरा दिख रहा है. पूरा दिख रहा है. So we need one of our entrepreneurs to climb up the ladder and come here to solve that kind of a big problem. करेक्ट है ही नहीं कोई. तो that sort of a problem is only solvable अगर पहले unity आए entrepreneurs के बीच. क्योंकि आप देखो 500 लोग ऑलमोस्ट जब देहरादून में अभी ही हैं, कितने खर्च करे मैंने? 6-8 हजार रुपए खर्च करे इन लोगों को जोड़ने में. और कमाया ही होगा मैंने, टू बी ऑनेस्ट. करेक्ट ठीक, कमाया ही होगा, क्या कमाया है काफी ज्यादा इससे. बट द पॉइंट इज कि कमाना वाज नॉट द प्रायोरिटी. कमाना तो आपने, यू वुड हैव रियलाइज्ड. अच्छा एक बात बताओ, यू वर इन द इवेंट. या डिड आई टॉक अबाउट ओकमो एट ऑल? नो कहीं पे भी नहीं बात की. मैंने इवेंट तो एक्चुअली में मुझे कहीं से लगा ही नहीं कि दैट यू वर डूइंग दैट काइंड ऑफ प्रमोशन. इट वाज मोरली जैसे कम्युनिटी इवेंट्स जैसे होने चाहिए कम्युनिटी इवेंट. एक अनाउंसमेंट मारा मैंने इनर सर्कल का, बस कि भाई आपको डीपर आना है तो ये एक चीज है, बस यही बोला मैंने. सो दैट आई कैन कनेक्ट विद मोर पीपल एंड थोड़ा और बेटर तरीके से हम नेटवर्क कर पाए. एक इवेंट में आप महीने में, साल में, किसी एक इवेंट में एक महीने में आ रहे हो,
उससे क्या हो जाएगा? You have to meet regularly ना, तभी Right. तो bond बनेगा, आपके channels बढ़ेंगे, सब कुछ होगा. That's something that we were essentially like. That's what the aim is. That's what we're doing. And goal अभी यही है to make the largest entrepreneurial network on this planet. And मैं बता रहा हूँ वो सबसे बड़ा network इंडिया से ही बन जाएगा. मतलब we don't even have to go to any Yeah, other so nation. of course we have the best thing we have is our population. तो Yeah, वहाँ से तो we can leverage a lot of things. exactly. And we have fantastic talent, fantastic brains Yeah. in मैं India. भी यही मतलब बोलने वाला था, सारी बड़ी कंपनी के CEOs देखो, they are Indian origin. we are very intelligent. Indians are very very intelligent. आप जब बाहर वालों से बात करोगे, try talking to, I hope my Britain clients or somebody are seeing, but I'll just put it up this way. Okay, so आप लंदन के लोगों से बात करो and after 10 minutes you'll be like how slow are they यार. मतलब after talking for some time you'll be like how slow are they. We think so fast. Right. अमेरिकन लोगों को आपको लगेगा कितने stupid है. I'm not kidding. You talk to them and you'll be like नहीं, इतना भी नहीं पता मैं था इसलिए इनको. कुछ नहीं बोल सकता. ये I तो have बहुत been बेसिक है. in UK, USA and Canada so many. But I'm not Yes, kidding. Like it is true. we are so smart, but Yeah. I'll tell you, we are also dumb. We are smart, but we are dumb in a different way. We are smart because हम होशियार बहुत हैं. डिफरेंस ये है कि उनमें गट्स हैं, वो कर देते हैं. Guts है, वो कर लेते हैं, हम गट्स नहीं करते. हम बस प्लान ही करते रहते हैं, अच्छा ऐसा अच्छा वैसा. नहीं, हम तो अपना आइडिया भी नहीं बताएंगे इसको. आइडिया चुरा लिया तो ये हाँ भाई, चुरा लिया भैया. वही आइडिया चुरा लिया. इसके अंदर नोट्स नहीं दिखाऊंगा, एग्जाम ज्यादा आ जाएंगे. हाँ, बच्चे आइडिया चुरा लिया. मतलब यार सोच बड़ी करो थोड़ा सा. दे हैव द माइंडसेट ऑफ इन्वेस्टमेंट. दे अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंस. यहाँ बहुत कंजर्वेटिव माइंडसेट. थोड़ा ये सबसे बाहर तभी आएंगे यार. इनकी गलती नहीं है बिकॉज ये सिखाया कहीं नहीं जाता. एजुकेशन में सेविंग 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 सिखाई जाती है. एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड आप कुछ सिखा ही नहीं सकते हो बिकॉज देयर कैन नॉट बी अ कोर्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. एवरी एंटरप्रेन्योर्स जर्नी इज डिफरेंट एंड आई हैव वर्कड विद एटलीस्ट 5 डिफरेंट क्लाइंट्स in the same industry doing the same thing with almost the same product. Positioning से या industry timing से सब फर्क पड़ जाता है. So you can't teach it exactly, but then you need to have mentors, you need to have the right guides. वहाँ पे I'm trying my level best through the community, through Okmo, through inner circle, whatever I can help them out. ये हम कर रहे हैं. Perfect. I think we have covered it all. We have given our audience a lot of information. Yeah. And, before we close down on this episode, I would like you to give your so with every guest I ask them, what are your top 5 learnings or top 5 things you would like to tell aspiring entrepreneurs or entrepreneurs, if in your language I will say less than 10 lakh, what they should be doing right now? What are the top 5 things they should be taking care of to grow their business, to become a sustainable business, not just grow it, but become a sustainable business? The simple shortcut number 1 is find a good mentor. Right. सबसे पहले find a good mentor, and I learned that very late. I wish थोड़ा पहले सीखता तो पैसा बहुत बचता मेरा. Find a good mentor and not a mentor like अपने पेरेंट्स को mentor मत बना देना भाई. Nothing against anybody's parents. Right. Find a person who is 10 steps ahead in the same industry that you are at and is doing good. Not 100 steps ahead. Not 100 steps ahead. Don't just be like अपने दिमाग में कि मैंने तो अडानी को बना दिया, अंबानी को अपना मेंटर बना दिया, एंड उसके कुछ 2-4 कोट्स पढ़ लिए, 1-2 नॉवल पढ़ लिए, एंड अपने आप को उसका. ऐसे नहीं होता. Find a person 10 steps ahead and spend maximum time with that person. पहला, find a good mentor. Second, you cannot be a good entrepreneur until and unless you have mastered sales. Right. Sales. You could be an innovator, but you cannot be a good entrepreneur until and unless you've mastered sales. So you have to marry sales. Third, you have to marry failures. Don't be afraid of failures. Eat failure for breakfast, lunch and dinner. And there is never the right thing कि यही method सही है. आपको try करना पड़ेगा, fail होना पड़ेगा, फिर try करना पड़ेगा, fail होना पड़ेगा, और एक ना एक बार काम कर जाएगा. Correct. Hit and tries and A/B split testing और ये सब चीजें आपको करते रहनी पड़ेगी. बिकॉज ये जो बड़े कॉर्पोरेट्स है ना, वो नहीं करेंगे, आप करोगे. उनके पास एक सिस्टम है, उनको अप्रूवल्स चाहिए, आप फट से कर सकते हो. Correct. डू इट. It is a strength. ठीक है. फोर्थ आई वुड से इज इन्वेस्ट अ लॉट इन मार्केटिंग. अ वेरी बेसिक थिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज, आप नॉर्मली सोचना, कोई भी बिजनेस है और जो भी ये देख रहे हैं बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को.
एक नॉर्मल बिजनेस आप पकड़ लो, कोई भी, गोलगप्पे वाले का उठा लो, नारियल पानी वाले का उठा लो, नारियल पानी वाले का उठा लो। उसके बाद ना भी करके 100 से 200 लोग आते हैं नारियल खरीदने के लिए दिन के। मनी का रोटेशन हो रहा है। इन मोस्ट बिजनेसेस आई एम टेलिंग यू, दिस अ वेरी मैसिव ब्लंडर मोस्ट पीपल डू इज, या तो उनका एक ऑनलाइन बिजनेस होगा। आप सही में अपने आप से पूछो, आपके पास 100-200 इंक्वायरीज भी आ रही है दिन की, 5-10-20 भी आ रही है दिन की? नहीं। उनका क्या होगा? रेफरेंस पे डिपेंडेंसी होती है। दे आर लाइक 5-10 इंक्वायरीज इन अ मंथ, 20 इंक्वायरीज इन अ मंथ, दैट्स नथिंग। यू शुड हैव 20 इंक्वायरीज इन अ डे। जब एक नारियल वाले के पास 200 मतलब आ रहे हैं तो 100 आपके 100 पास 200 200 कस्टमर आके, तभी तो करेंसी रोटेशन कैसे होगा? करेक्ट आप हॉबी बना सकते हो उसमें, बिजनेस नहीं बना सकते। बिजनेस नहीं। ठीक है, तो मेक श्योर वो रोटेशन के लिए यू नीड द वॉल्यूम, यू नीड द नंबर ऑफ इंक्वायरीज इन योर बिजनेस। अब वो प्रोडक्ट बिजनेस भी है, सर्विस बिजनेस भी है, कुछ भी है, यू नीड नंबर ऑफ इंक्वायरीज, एंड फॉर दैट यू हैव टू इन्वेस्ट इन मार्केटिंग, नॉट स्पेंड इन मार्केटिंग। करेक्ट कीप अ मार्केटिंग बजट विच मोस्ट पीपल डोंट हैव। वो वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। वर्ड ऑफ माउथ इज अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग। गुड थिंग बिकॉज आप अच्छा कर रहे हो, बैड थिंग बिकॉज आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका अगले महीने कितने कस्टमर आएंगे। किसी महीने तो बहुत अच्छे हो गए, किसी महीने गायब एकदम। That's a big blunder. So invest in marketing. And final thing is have a very big goal. एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा मैं जब भी कहीं जाता हूं तो मैं मतलब किसी भी पब्लिक इवेंट पे जाता हूं तो आई मेक श्योर, ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने मुझे ये कविता सुनाई थी। आई होप मैं स्क्रू अप ना कर दूं। आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर इट इन द राइट वे। बहुत ही रैंडमली बात करते करते मैंने बोल भी दिया। सो इट वेंट समथिंग लाइक दिस। कविता का नाम लक्ष्य है, छोटी कविता है। एंड इट से समथिंग लाइक, राही कहाँ तू जा रहा, क्या राह का भी भान है, तू कौन है क्या कर रहा, क्या लक्ष्य का भी ज्ञान है, क्या पास है तेरे बता पथ पार करने के लिए, क्या क्या यत्न तूने किए जीवन बनाने के लिए। पाठन पठन तो मार्ग है, यह लक्ष्य हो सकता नहीं, तोता पढ़ा क्या विश्व में कुछ कार्य कर सकता नहीं। उत्थान करने के लिए तो साधना ही चाहिए, सीधा सरल सादा रहन, हाँ लक्ष्य ऊंचा चाहिए, हाँ लक्ष्य ऊंचा चाहिए। The simple thing out here, what is to be understood from here is कि आपको अपना गोल बहुत हाई रखना है, अनरियलिस्टिक रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड कीप वर्किंग, साधना चाहिए, पढ़ाई लिखाई सब पाथ है, इट इज नॉट द गोल। ठीक है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कविता। अगर आप ध्यान से सुनोगे इसको, वापस आप बैक करके वापस सुनना, यस तो एक एक वर्ड को ढंग से समझने की कोशिश करना, यू वुड रियलाइज अरे ये मुझसे बात हो रही है। एंड वी हैव टू काइंड ऑफ रीवायर आवरसेल्फ इन द राइट वे। These were my 5 tips. amazing. Last one was very amazing. What we will do is we'll put a transcript as well of that specific poem down in the description so Thank that you. our audience can save it. It's by Major Gunanand Dowell. So Okay. not mine. It's by Major Gunanand Dowell. He deserves the fair credit for this. Perfect. We will give them the credit in the description. Perfect. Perfect. We have covered it all. So, first of all, thank you so much to Sitij for coming on this episode, giving us an hour of time. We have almost hit the 1 hour point, and the value that you have given specifically to our audience who is and who are aspiring entrepreneurs or who are converting their hobby to a business, it is just amazing. It will help Thank them you a so lot. much. Thank you And so much for trust having me, me. if I was in 2020, if I would have found this system, I would have surely become your client because I have struggled with all of this. I related with all of the systems that we have talked about. So trust me, audience, what Kshitij is doing, it is very necessary because when you start, you need a lot of guidance, you need a lot of help, and you need to understand the importance of marketing, which is the key thing. Without marketing, no business can survive. I am a core believer of that. Whatever Kshitij has said. And again, for our audience now, thank you so much for watching our episode number 60. Hope you had a good Diwali. And this episode helps you in now scaling up your business because the festive season is now almost over and now we are back to our business. So, and those who have watched the episode till here, please do comment down in the description whatever questions you have.
or you let us know what other questions you want us to ask Kshitij, we will surely send him the list. We will get answers for you. And again, thank you so much to our audience, and thank you so much, Kshitij, for joining in. Thank you It was so a much for pleasure doing having me. this episode with you. Thank you. I hope I could help. Yeah.